Today, it's an honor to talk to Koing Madam. She is very active in education field, which is a need of the hour for almost all the states or countries. Arunachal Pradesh is one of the northeast state, and as we very well know that compared to other states, this area of our nation is deprived of many development activities due to its geographical situation, or maybe the uh, education lacking aspect, or development lacking situation. But there are people who are actively working on this sector. Especially government is also doing extra bit to provide all kind of luxuries and facilities to the state, and local people are also coming forward to help their own people. So Going Samsung ma'am is one of them, and let us listen what is she up to, and her experience, her own achievements, her entry to education field, and also the contribution she has done through various initiatives and activities to make children equipped and educated, and also develop interest in them and parents for the education. Going ma'am, thank you. Thank you for giving your time, and welcome to Diva session formally. Namaskar. के काम के बारे में और आपके स्टेट में आप एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और आपका जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन फील्ड में उसके बारे में आप हमें बताइए पहले तो ये बताइए एंड टेल मी मोर अबाउट योर प्लेस योर स्कूल योर बैकग्राउंड I belong to Tanglang district and I am born and brought up in Bordumsa subdivision. And I have started my career from 1999 as a junior teacher and promoted. And then I was posted in a primary school. Then after that, in 1991, I joined in government middle school Goju. And afterwards, I was promoted, not promoted, but designated as adult education supervisor. Then in 1996, I went to Changlang and served as a EDU academy for 8 years. Then after that, promoted as a senior teacher political science. And in Bodumsa Government High Secondary School. So afterwards, then now at present I am a DDAC, Deputy Director of School Education in Namsai District. Recently I joined in the month of April, and before that I was a principal in Government High Secondary School Namsai. I see. Okay, wonderful. So बहुत अच्छा लगा एक तो आपका एजुकेशन और आपका कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन फील्ड आपने कहा यू वेर ADO that is adult education supervisor. So what is that adult education for parents of the children क्या था ये Adult education means those who are out of school, not out of school, but adult, but not literate. They were given literacy, reading, some mathematics, and reading and writing their name. It was compulsory for the adult person in villages, in those days. The program is not functioning. Oh, but it was useful, right? More adults could read and write. Yes. So why is it stopped? Means now, last year also it was going on, but now they are going to start again the literacy of the adult people. Again it is going to start. Okay, okay, wonderful. अभी आपने बताया कि आपने पॉलिटिकल साइंस में क्वालिफिकेशन किया है और आपने बीएड भी किया तो आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत एनकरेज किया पढ़ने के लिए क्योंकि मैंने सुना है कि
बच्चे पढ़ते नहीं है, भाग जाते हैं स्कूल से। हम्म। छोटे में मैं अपना गांव से 3 किलोमीटर दूर में स्कूल जाते थे। हाँ। बहुत जरूरी था उसको, हम्म। लेकिन मेरा माँ पिताजी ने मुझे स्कूल भेजा। हाँ, मेरा पिताजी भी टीचर ही था, तो इसीलिए हाँ, पिताजी ने मुझे स्कूल भेजा और उन्होंने कहा कि हमारा सोसाइटी में लड़की लोग को पढ़ाना है, लेकिन हम्म, गांव में लोगों को बताने से कहते हैं हम्म, लड़की तो शादी हो जाएगा, फायदा हम्म, नहीं है पढ़ा के। तो मेरा हम्म, पिताजी ने संकल्प लिया कि मैं हम्म। अपना बेटी को पढ़ाऊंगी। तो वेरी इसीलिए मैंने भी, पिताजी जब मैं क्लास 12 पास होके कॉलेज जी, निकले थे, तो पिताजी जी, ने मुझे कहा कि तुमको ग्रेजुएट बन के आना है। तो वेरी इस गुड, पढ़ाई में वेरी इधर नाइस। उधर इतना मेरा ध्यान नहीं जाता था। फिर मैं बीए पास करके आया, तो बीए पास करते ही मैं इंटरव्यू दिया और मुझे टीचर मिल गया। देन उसके बाद मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के लिए ज्वाइन किया। तो बाद में वो लोग ने कहा कि मैं रेगुलर नहीं था, क्योंकि मैं इधर टीचर भी कर रहे थे, तो मैं बीच में, तो हमारे सर है एक, तो मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो मृगन दत्तो सर बोल के, मृगन दास बोल के है। उन्होंने कहा कि या तो आप नौकरी छोड़ो या पढ़ाई करो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी, तो नौकरी छोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा छोड़ना नहीं है, बाद में आप प्राइवेट दे दीजिए। तो मैं ऐसे 20-20 में जाते थे, लास्ट में मैं प्राइवेट ही दिया और मेरा 56 मुझे मिला है मास्टर डिग्री में। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभी अभी कितना साल हो गया वो एजुकेशन करके और जॉब करके? मैं तो जॉब करके, तो अभी मैं 89 से जॉब में हूँ, तो अभी 30 इयर्स अप हो गया। ओके। तो हम्म, दीदी 30 इयर्स पहले जब आप स्टूडेंट थे और हम्म। अभी जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है? अभी लड़कियों को पढ़ाया जाता है? अभी तो बहुत पढ़ाया जा रहा है, मास्टर डिग्री भी बहुत निकल रहे हैं, हम्म। नौकरी में भी घुस रहे हैं। पूछ और रहे हैं। अभी लड़कियों में एक ये हो गया कि मुझे नौकरी करना है हाँ, जैसे भी हो, क्योंकि लड़का लोग को तो प्रॉपर्टी मिल जाता है, करेक्ट। लेकिन लड़की अपना पैर में खड़ा होके, हम्म, मैंने, वो लोग भी मोटिवेटेड है कि पढ़ने से अच्छा नौकरी मिलता है, हम्म। फिर वे ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव होता तो है। ऐसे मुझे देख देख के बहुत लोगों ने प्राइवेट में भी मास्टर किया, बीएड किया, अभी तो बहुत निकल गया हम लोग का सोसाइटी में। करेक्ट। और ये एक आपका इंस्पिरेशन भी है। राइट। आपका जो ट्राइबल कम्युनिटी है, आपका जो कम्युनिटी है, उसका नाम मैं भूल गई, क्या है उसका नाम? मेरा कम्युनिटी है सिंफो कम्युनिटी। सेम्फो कम्युनिटी। और आई थिंक बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, हम लोग बुद्धि से टोटली। हाँ, हाँ। हम्म। तो अम, उसका जो एक ये है स्पिरिचुअल पाथ है, तो उसके बारे में आपने शायद बहुत कुछ स्टडी भी किया हुआ है ना? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, बुद्धिज्म में मेनली वो बुद्धिस्ट बुद्ध का जो टीचिंग है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम्म, पंचशील है हम्म, और एट फोल्ड पाथ है, जी। फोर फोर नोबल ट्रूथ है, तो हम्म, वो हम लोग फॉलो करते हैं। और जो पूर्णिमा, हम्म, अष्टमी, अमावस्या, ये हम्म, अष्टमी दो होता है, तो हम्म, महीना में 4 दिन हम लोग भगवान को पूजा करते हैं। वैसे भी घर में हर दिन खाना खाने से पहले भगवान को पूजा प्रेयर करते हैं, होता खाना है। हाँ। को दे के हम्म, प्रेयर करता है। हम्म, तो ये पूरा फॉलो करते हैं। कोई कोई जो भाव से भी, तब भी वो मैंने फॉलो करते हैं। करेक्ट। तो हम लोग स्पेशली एम्फेसिस ये है कि हम पंचशील को जितना मना सके वो अच्छा है, ऐसा हम हम्म, मानता है। राइट। और और उससे हाँ, एक मन शांति भी होता है और एक सर्विस ओरिएंटेड माइंड भी होता है, राइट? सर्विस ओरिएंटेड, फिर कॉम्पेशनेट होते हैं। जैसे हाँ, प्राणी हत्या नहीं करना है तो लोग बचते हैं प्राणी हाँ, हत्या करने के लिए। जी, फिर वो नशा नहीं करना है। करेक्ट। आ,
प्राणी हत्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये पंचशील में होता है। जैसे कि पनाति पाता वेदामणि सिक्खापदं समादियामि, मतलब not to kill, not to make planning for killing anybody. All this come in this panati pata, not to kill. अहिंसा पथ, करेक्ट। अधिन्ना दाना means जो चीज आपको नहीं दिया है उसको नहीं लेना है। माने अगर कोई देता है तो लेना है, तो दाना मतलब देना। लेकिन अधिन्ना दाना जो मतलब आपको दिया ही नहीं, वो चीज को नहीं लेना। वो एक तो हम लोग मानते हैं। दूसरा है कामेशु मिथ्याचारा, मीन्स दूसरा का पत्नी, दूसरा का पति को मन नहीं लगाना है। मतलब अपना घर में ही, मतलब फेथफुल टू बी टू योर ओन स्पाउस, माने वो है। फिर 4 नंबर में है चोरी नहीं करना, मतलब झूठ नहीं बोलना। जो 4 नंबर है मुसावादा, वो मतलब झूठ नहीं बोलना है। मतलब एक झूठ बोलने से 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो उससे बचना। फिर लास्ट में है एनी काइंड ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, उसको यूज नहीं करना है। वो 5 सील है जो हमें फॉलो करना है। आवश्यक है। वो 5वां सील तो नशा नहीं करना, क्योंकि नशा करने के साथ साथ बाकी चारों सील को हम लोग तोड़ देते हैं। तो इसलिए उसको अगर रखने से बाकी सील तो ऑटोमेटिक हम लोग फॉलो कर फॉलो सकेंगे। करेगा, राइट राइट। और ये बुद्धिज्म में ये जो जितना पंचशील है, जी। ये भी एक जो वे करता है, इट बिकम्स ए क्राइम। तो इसलिए ये बहुत ही ह्यूमन बीइंग के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट। आपने 2013 में आप जब वाइस प्रिंसिपल थे हायर सेकेंडरी स्कूल का, तब आपने एक इनिशिएटिव लिया था टीचर्स के लिए क्वार्टर्स बनाने का। हम्म, तो वो हाँ। क्या इंसिडेंट था? में ऐसा हुआ कि वहां में प्रिंसिपल थे, 2-3 महीने के बाद वो ओके। मेरे। उसके बाद उस समय इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का टीचर नहीं था। फिर और एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी साइड नहीं था, एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का सीनियर टीचर नहीं था। तो मैंने लोगों से बुलाया, लोगों को, जितना मेरा पेरेंट्स है, मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन वगैरह सबको बुलाया। फिर उन लोगों से मैंने कहा कि ऐसा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट टीचर देने से भी ये बस्ती एरिया है, कहाँ रहेगा। तो इसके लिए हमें क्वार्टर बनाना है। तो वो क्वार्टर बनाने के लिए आप लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन लोगों ने आइडिया दिया कि हम लोग 200 रुपया करके एक स्टूडेंट का उठाएंगे। तो 200 रुपया करके उठाया। उसके बाद किसी ने लकड़ी दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने थोड़ा सा टीना दिया। तो मैंने 3 क्वार्टर बनाया, जिसमें 2 रूम और किचन बाथरूम सब बना दिया। तो क्या हुआ है, मैंने पक्का कर दिया, ऊपर टीना लगा दिया और बैम्बू से वो बेड़ा बना दिया। तो जब हो गया तो डायरेक्टोरेट में खबर दिया, द क्वार्टर इज अवेलेबल, सेंड पोस्ट टीचर फॉर द फॉलोइंग सब। तो इन लोगों ने भी बहुत उत्साह से 7 साल में हम लोग को टीचर भेज दिए। हाँ, तो ऐसा करके मेरा जो टीचर है, फिर साइंस का टीचर नहीं था, तो मैं ऑलरेडी एडीओ था वो चांगलांग में डीडीएससी ऑफिस में। तो मैंने डीडीएससी, उस समय मोरांग सर था, ये फिक्सल मोरांग बोल के डीडीएससी सर, मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक साइंस टीचर चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक साइंस टीचर भी दी। तो इस तरह से मेरा स्कूल का टीचर्स पूरा मुझे मिल गया। उसके बाद भी उसमें फर्नीचर का कमी था, वो सब मैंने वही पीपल्स फंड को यूज करके उसको खरीदा। टीचर्स कॉमन लोगों के लिए भी टेबल वगैरह। उसके बाद स्टूडेंट में मैंने ये पहले तो मैं बच्चों को भगाते थे, अरे क्यों इस क्लास में नहीं आते थे। तो बाद में मैं सोचा, मैं तो गाय चराने वाला तो है नहीं, तो मैं क्यों उन लोग को भगाऊं। तो इसलिए मैंने एक ऑर्डर निकाला, दोज हु आर प्रेजेंट इन द मॉर्निंग, एब्सेंट इन द इवनिंग विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। ऐसा करके मैंने सप्ताह तक हर क्लास का अटेंडेंस चेक किया, फिर असेंबली में एनाउंस किया।
सब एक सप्ताह का बाद में सब बच्चा लोग समझ गया कि मॉर्निंग में प्रेजेंट होके इवनिंग नहीं होगा तो एब्सेंट होगा, इसलिए वो लोग इवनिंग में भी फुल अटेंडेंस देने लगा। ऐसा करके मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो गया। हाँ देन मैंने एक ये टेक्निक लगाया, वो है मैंने जैसे वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, मंथली 4 टेस्ट हम लोग ने लिया, ओके फिर क्वार्टरली टेस्ट लिया, फिर हाफ ईयरली होता ही है। फिर हाफ ईयरली में भी पहले क्या था कि क्लास 12 को एग्जाम नहीं देना है, तो मैंने वो बंद, क्लास 12 भी क्यों एग्जाम नहीं देगा, वो लोग भी देगा, तो ऐसा करके को हाफ ईयरली देने दिया। फिर वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, वो करते इम्प्रूवमेंट हुआ, बच्चा लोग में भी इंटरेस्ट जगा। टीचर भी पहले तो थोड़ा वो लोग नाराज था क्योंकि इतना काम करना पड़ रहा है, बाद में जब रिजल्ट देखा तो वो लोग भी बहुत अच्छा पाया, नहीं मैडम आपका टेक्निक बहुत अच्छा है, सो दे ऑल्सो प्रेस। देन हम लोग ने एक इंट्रोड्यूस किया, वो सब्जेक्ट क्विज किया। सब्जेक्ट क्विज में हम क्लास से लेके क्लास 10 का स्टूडेंट को क्लास वाइज क्विज कंडक्ट करता था, तो उसमें से बेस्ट 5 was selected from each class and then we celebrate a grand finale। तो ग्रैंड फिनाले का पेरेंट्स को भी बुला के हम लोग ने वो क्विज को अटेंड करने दिया, तो पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, बच्चे भी बहुत खुश थे। हाँ, फर्स्ट ईयर में इतना बच्चा नहीं था ऑडियंस, क्योंकि मैं ऑडियंस को भी जो एक करता था, तो मैं कैडबरी एक एक या फिर किटकैट, तो ऐसा करके नेक्स्ट ईयर में थोड़ा बढ़ गया। थर्ड ईयर में तो ऑडियंस से ज्यादा था, मैंने इन लोग से भी जो कंपटीशन सा हो गया, मैंने ओके सब चॉकलेट मिलता था, तो इतना, तो वेरी इसके बाद हम लोग मिड डे मील में भी राइट घी डाल के बनाते देखा था। हाँ, मिड डे मील में घी भी डालते थे, फिर कभी बादाम देता था, कभी फल वेजिटेबल्स। हाँ देन एक बार तो मैं कार्टून कार्टून एप्पल मंगाया, हाँ हाँ उसमें एप्पल दिया है, सब बच्चा को देता है, उसमें 12 तक का बच्चा को भी खाओ। हाँ, ये गवर्नमेंट का चावल है, सब लोग खाओ, तो सब खाते थे, टीचर्स भी कभी खाते थे। तो इस तरह एक बार एप्पल दिया तो छोटा छोटा बच्चा कोई कोई एप्पल ऐसा होता है, मैंने एप्पल इतना, मैंने वो लोग बेचारा एप्पल तक नहीं मिला है, देखा नहीं था तो हाँ वो तो वो खाने मिल के ओ एप्पल ऐसा लगता है, मैंने वो सुन के मुझे और भी अच्छा लगा है। मैं चलो मेरे लोग में जो है कुछ खाने मिलता है, इतना खुश होता है। फिर हम लोग स्कूल सरस्वती पूजा मनाते थे, तो ओके सरस्वती पूजा हम लोग लोकल ड्रेस पहनने थे, वेरी गुड बच्चा लोग अपना लोकल ड्रेस में आएगा और सब लोग आते थे और बहुत एंजॉय करते थे वो। फिर हम लोग थोड़ा क्या बोलता है इसको, हम लोग का जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन का रखते थे हम लोग का। उसके बाद बच्चों को भी बोलने देते थे, फिर टीचर्स बताते थे क्यों मनाया जाता है, टीचर्स थे। फिर पूरा होल डे हम लोग का प्रोग्राम होता है उसमें। ये हाँ, आप बता रहे हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बता रहे हैं आप, ये जो पूरा इनिशिएटिव आपने लिया वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। लोहित लोहित में ना नहीं नहीं, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में ओके हाँ, अभी तो मैं नामसाई में हूँ। हाँ हाँ, जी अभी नामसाई अच्छा डिस्ट्रिक्ट में मेरा हाँ एक बात बताइए मैडम मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है सो आई read that earlier children used to run away from the school because they did not like that restriction and discipline because they did not know this. They were very free children who would play in jungles and all the time outside. There was nobody to question them. अभी आपने ये जो सब इनिशिएटिव चलाया आपने बताया कि न्यूट्रिशियस फूड देना क्विज करना कंपटीशन करना फैंसी ड्रेस कंपटीशन करना तो इस सब से बच्चों में तो इंटरेस्ट आया है पर समवेयर स्टूडेंट्स और टीचर्स का भी एक रिलेशनशिप होता है ना जिससे उनको अट्रैक्शन लगना चाहिए कि आई शुड गो टू स्कूल दे लाइक टू कम टू स्कूल तो उसके लिए आप क्या करते हो मैं उन लोग से इंटरेक्शन करती हूँ और पूछती हूँ क्या खा के आया, आज क्या सब्जी बना। सो आई यूज्ड टू आस्क, और क्या घर में पढ़ते हो कि नहीं, माँ पिताजी है कि नहीं,
फिर हमारा टीचर्स को भी काउंसलिंग जरूरी है। हाँ। तो जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते तो टीचर भी सोचते हैं कि चलो क्या जरूरी है। लेकिन ऐसा बोलने वाला भी चाहिए टीचर्स को भी कि नहीं, बच्चे कभी कभी झगड़ा करके टीचर के साथ भी ये होता है, तो उसको भी प्रोटेक्शन देने वाला चाहिए। मतलब हाँ, मैं हूँ, आप लोग चिंता मत करो। और बच्चा भी मालूम होता है कि उनका उनका ऊपर में इंटरेस्ट ले रहा है तो हमारे हमारे अच्छा के लिए है। तो हम उन लोग को काउंसलिंग देते थे कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आपका एम क्या है, द पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आप क्या करेक्ट। बनना चाहता है, वो सब पूछना है वो लोग को। तो वो लोग भी समझते हैं हाँ ये तो मेरे लिए बोल रहे हैं। लेकिन हम अगर ऐसे पढ़ाता है सिर्फ बोलने से, क्या के लिए पढ़ा रहा है मालूम नहीं है। हाँ अभी साइंस लेना है, साइंस में क्या पढ़ना है बताना जी। होगा बच्चों को। और टीचर बनना है तो मुझे क्या करना है, डॉक्टर बनना है तो क्या करना है। तो हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होता है, जिसका वजह से बच्चों की अवेयरनेस नहीं है। और मैं पेरेंट्स मीटिंग हूँ, पेरेंट्स मीटिंग जब मेरा जैसे क्वार्टरली टेस्ट हो गया तो मैं पेरेंट्स को बुला के दिखाता हूँ कि आपका बेटा ने इतना नंबर मिला है या ये इसमें कम है, तो आपको क्या करना चाहिए। फिर आते हैं बच्चों के लिए, तो क्लास वाइज जो उन लोग को बुला के बात करते हैं, तो बात करने से पेरेंट्स भी समझते हैं नहीं हमारे लिए कर रहे हैं। करेक्ट। तो तब उन लोग की मैंने अपना से वो लोग भी इंटरेस्ट होता है। और हम लोग का जो स्टूडेंट मीडिया है, हर चीज को वो लोग घर में जाके बताते हैं। तो हम अगर अच्छा अच्छा बात बोलेंगे तो वो लोग जाके अपना पेरेंट्स को बताते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर करेक्ट। जब रिजल्ट आता होता है तो नेक्स्ट ईयर से तो बोलने का जरूरी नहीं है, अपना से इंटरेस्ट लेके ये करते हैं। अभी मैं हाई सेकेंडरी स्कूल नामसाई में पहले पहले अटेंडेंस डेवलप करने के लिए मैंने जो बच्चा 100 अटेंडेंस लाएगा तो उन लोग का हम अवार्ड देंगे। तो ऐसा हम जब किया है तो 150 स्टूडेंट्स 100% अटेंडेंस, तो उन लोगों को मैंने 10 रुपये का एक एक पेन दिया। अरे वाह। उन लोग ने पूरा उन लोग का बीच में ये कंपटीशन हो गया कि मुझे जो है, जब 100% वो लोग अटेंडेंस दे चुका 3 महीना में, तो पढ़ने में ऑलरेडी इंटरेस्ट हो ही गया वो लोग का, क्योंकि जो पहले बाहर रहते थे वो भी अंदर है। तो करेक्ट। एक बार अंदर रहने का जो आदत बन है तो उसमें मंथली देन असेंबली में हम लोग जीके बोलने देते थे, फिर अपना इंट्रोडक्शन देते थे। उसके बाद कुछ भी मतलब अच्छा थॉट, तो उसके लिए मैंने हर क्लास को तो मैं उधर में 6, 7, 8 को इंट्रोडक्शन देने देता था और बाकी को जीके देता था। और 11, 12 ऐसा है तो उन लोगों को न्यूज देने देता था। तो हर सेक्शन को मैंने मौका देता इन्वॉल्व था। तो रखता था उसमें एक्टिविटी में। हाँ, फिर कभी कभी वो असेंबली में योगा करते थे। हम्म। तो जब जीके वगैरह बताते हैं तो बच्चा जो पढ़ने वाला है तो ऐसा करके वो लोग में जीके भी डेवलप हो गया। तो वो हम अगर इंटरेस्ट देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक हमारा पास आएगा। तो हम ट्रू। अगर वो लोग को जब वो कंप्लेन करते हैं, हम्म। सुनता नहीं है, कोई कोई जितना बोलने से भी फायदा नहीं है, तो वो सुनता नहीं है उसका पास जाके, तो अपना मर्जी करना शुरू करते हैं। इसलिए शुरू ये करता है। हम अपना खुद sense of responsibility of the यस। teachers and the principal and है। the parents. स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स। Three components are there. Huh. Students, teacher, and parents. If we three come together, राइट। then the result will be good. Hmm. गुड। एब्सोल्युटली वंडरफुल। Hmm. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और एनकरेज कर रहे हैं चिल्ड्रन को स्कूल में आने के लिए। Hmm. आपने एक और काम किया है आपने महिला मंडल बरडुमसा में आपने कुछ एक इनिशिएटिव चला है जो कि विमेन के लिए है। हाँ, तो वो हाँ। क्या काम है? ऐसे करते हैं, बीच बीच में हम लोग उनको बुलाते हैं, बुला के वहां पर डॉक्टर्स को बुलाते हैं, फिर इंस्पेक्टर पुलिस का उनको बुलाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाते हैं,
फिर लॉयर को बुलाते हैं। तो हम लोग वो लोग को सबको 1 घंटा टाइम देता है कि जो बस्ती वालों के लिए जैसे लीगल प्रैक्टिस में क्या फायदा है तो वो बताने देगा। जैसे वुमेन रिलेटेड है, क्योंकि कितना डाइवोर्स होता है, क्या क्या होता है, फैमिली पेंशन होना है, कुछ कुछ ना, तो उसका बारे में लॉयर बताएंगे। फिर मेडिकल का लेडी डॉक्टर को बुलाते हैं, जो गाइनो प्रॉब्लम्स को बताते हैं वो लोग। फिर एग्रीकल्चर वाला को हम लोग बुलाते हैं, तो खेती कैसे करना है उसका बारे में बताएगा। फिर पुलिस जो जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्यों होता है और अगर होता है तो उसमें क्या हेल्प हो सकता है, माने उसका अवेयरनेस। और मैं खुद भी उसमें काउंसलिंग देती हूँ। तो बोर्डम साहब में हम लोग का ये दीदी लोग है, पीसीलू सिंह के, वो महिला मंडल का प्रेसिडेंट है। फिर जेडपीएम की लेडी थी, वो टोंको सिंह बोल के। तो हम लोग सब मिलके वहाँ का जितना जेंट्स है, जितना भी पब्लिक लीडर है, हम लोग सब लोग को बुलाते हैं। बुला के उसमें 300 400 लेडीज आते हैं। तो ऐसा करके वहाँ खाना भी होता है। फिर उसमें माइनर गेम्स होते हैं, कबड्डी भी खिलाता है, कभी फुटबॉल खिलाता है हम लोग। हाँ, तो ऐसा करके मैंने औरतों को बता बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वो जाके घर में बताता है, फैमिलीज में बताता है, करेक्ट। हाँ। लेकिन अगर हम जेंट्स को बता रहे हैं तो वो सिर्फ कंज्यूम करके चला जाता है, वो पास ऑन नहीं करता है। तो हम लोग लेडीज, इसलिए लेडीज को ही मैंने जैसे 1 डे कैम्प, कभी कभी महिला मंच करते हैं हम लोग। फिर किशोरी खास स्कूलों में रखते हैं, क्योंकि वहां में हम लोग अरुण ज्योति प्रोजेक्ट विवेकानंद केंद्र का भी चल रहा है। तो हम सब मैक्सिमम औरत लोग ही वहाँ इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद हम लोग इंडिजिनियस फेथ डे, वो भी जोर शोर से मनाते हैं वहाँ पे। तो हम सब जाति मिलके, वहाँ पे बहुत सारे जातियां हैं, तो वो लोग सब, महिला हो जेंट्स हो, हम लोग एक साथ में कोई भी प्रोग्राम को बनाता है तो मीटिंग्स करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को करके फिर हम लोग उसको मैंने वो ऑब्जर्व। आपका ये जो आपने अभी नाम लिया, ये जो अरुण ज्योति प्रोजेक्ट है, जो विवेकानंद केंद्र का प्रोजेक्ट है, मैंने सुना कि वो अभी इट हैज बिकम नगर, इतना स्प्रेड हो गया है। तो क्या है वो प्रोजेक्ट? वो है, मैंने समाज सुधारने का काम करते हैं और बलवाड़ी चलाते हैं, फिर आते हैं, फिर जैसे किताब का बारे में बताना, मैंने कैसे खान पान कैसा होना है, हेल्थ कैसा होना है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, उसमें विवेकानंद केंद्र को कोई स्पॉन्सर करते हैं। कभी कभी मुंबई से भी लोग डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ, तो वो फ्री करते हैं सबको। हाँ, तो उसमें फ्री चेकअप होगा, दवा भी देगा। ऐसा करके हम लोग साल में 2-3 बस्ती में हम लोग मेडिकल चेकअप करवाते हैं। फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं कि आपका बेटा स्कूल में है तो पहले है कुछ भी प्रोग्राम होगा बच्चों को भेजता है। तो हम लोग जब ये सब प्रोग्राम अवेयरनेस करते करते बाद में देखा गया है कई डांस है तो वो माँ लोग ही जाके करते हैं, बच्चों को नहीं भेजते। अच्छा। तो समझ में आ गया है कि बच्चा का जो टाइम है वो बहुत वैल्यूबल है, तो इसलिए माँ लोग ही जाते थे हर काम में। तो बच्चों को स्कूल में भेजना ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। फिर अच्छा, हम वो लोग ने है। एक महीना कैंप किया था वुमेन का कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट का लोग आए, वहाँ में हम लोग कल्चर भी किया। उसके बाद वही अवेयरनेस का प्रोग्राम, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे अरुणाचल विकास परिषद से। उन लोगों ने भी पूरा नेशनल का इंटरनेशनल लेवल का औरतों को सिखाया कि हम अपने बच्चों को कैसे लालन पालन करना है, माँ का रोल क्या है, समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो हर चीज का उसमें ज्ञान देता है। तो 4 दिन का हम लोग का कैंप बहुत सक्सेसफुल हुआ उसमें। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने कुछ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी दिया है स्टूडेंट्स को ना? हाँ, वो गवर्नमेंट का ही एक तो स्कीम था, तो अभी भी चल रहा है वो। तो हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल में वो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से दिया था सेल्फ डिफेंस। और आजकल स्टूडेंट इस कैडेट बोल के भी एक तो निकल रहे हैं, तो वो बहुत सुंदर से हुआ था।
तो बाहर से लोगों ने सिखाया, मतलब पूरा एरिया का हाँ। हम लोग का स्कूल में, हाँ। स्कूल नामसाई में वो हुआ है। तो उसमें बहुत अच्छा से किया उन लोग ने, हाँ। उन लोग को लगा ही नहीं कि ये लड़की है, मतलब इतना अच्छा से उन लोग ने कैसा करना है वो दिखाया उसमें। ठीक है। हाँ, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अभी हाँ। जैसा सिचुएशन आउटसाइड डेवलप हो रहा है, उनको हम्म। अपना खुद का सुरक्षा करते आना ही, तो ये हाँ। सीखना भी बहुत जरूरी है। अम, मैंने और एक बात ऐसे, मुझे मेरी किसी से बात हुई थी कुछ 2-3 महीने पहले, हाँ। तो मैंने उनसे मुझे पता चला कि वहाँ पे ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, यंग बच्चों में, कि उसमें बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जिससे फिर वो स्कूल छोड़ देते हैं, पूरा एक डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपके स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को, हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पे आप इस बारे में कुछ काउंसलिंग सेशन करते हैं? हाँ, हाँ करते हैं, उसका उसका भी नशा मुक्त भारत का भी स्कीम होता है, अभी भी वो होने वाला है, अभी 7 तारीख को भी और एक मीटिंग है उसके लिए। तो ऐसे जब अभी कोरोना होके स्टूडेंट स्कूल से आउट हो गया, या नहीं तो ये स्कूलों में जब बच्चा आता है तो उसको हम लोग हर समय में कुछ ना कुछ काउंसलिंग देते हैं, हाँ। और लेकिन स्कूल में तो हमने ऐसे नशा करते हुए ओके। अ, और तो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है, वो हाँ। लोग ही ज्यादा इसमें जाते हैं। स्कूल हाँ। में जो आते हैं वो बच्चे तो उसमें नहीं है, मैंने कोई नहीं। कोई गांव वाला स्कूल में हो सकता है, हाँ। हाँ। लेकिन अभी टाउनशिप में तो मुझे दिखाई नहीं दिया। नहीं देता है। लेकिन यही है मेरा दीदी, मतलब हाँ। उन लोगों का काउंसलिंग बहुत जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि स्वतः से वो लोग स्कूल में जाता है, कभी फेल हो जाता है तो वो निराश हो जाते हैं। तो करेक्ट। अभी निराश होना है, क्या होना है, उसके लिए क्या करना है, जैसे निराशा को तो लेके चलने से होगा नहीं, तो होगा हम नहीं। दूसरा को तो नहीं बदल सकता है, तो अपना तो बदल सकता है। ये राइट। मोटिव लेके हम लोग करना है। एक बार फेल हुआ तो क्या हुआ, हम्म। फेलर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, हम्म। ऐसे हम्म। हम्म। तो वो हम लोग सोचते हैं हम्म। फेल हो गया तो जिंदगी तो खत्म नहीं हुआ है ना। तो हम्म। अभी आप देखिए जो बैक जी बहुत आगे जा रहा है, जो टॉप कर रहा है, कभी कभी तो वो लोग भी मिस मैंने अपना लाइफ जो सही तरीके में नहीं जाता है। नहीं जाता नंबर है। मिलना बड़ा बात नहीं है, हाँ। अपना लाइफ को सक्सेसफुल बनाना ये नंबर 1 बात है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मेंटल स्टेबिलिटी होना, और अपने आप को फेल्योर में से भी बाहर निकाल के हम्म। आगे दूसरों को भी सहायता करने के सक्षम बनाना, हाँ। ये सिखाना बहुत आवश्यक है। टॉपर करने से ज्यादा, टॉपर हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर नहीं हम्म। होता है तो भी, एज यू सेड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, उसके आगे भी कुछ कर सकते हैं, लाइफ बेटर में कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसको जीने के लिए मैंने छोटे पेरेंट्स का भी उसमें हाथ है। जो हाँ। पेरेंट्स अपने जगह अच्छा से ज्ञान नहीं देता है, सही ढंग से नहीं रहता है, अभी माँ पिताजी खुद ड्रग्स लेगा, हाँ। ओपियम लेगा, तो बच्चा स्वतः से ही देख रहा है कि ये लोग ओपियम ले रहे हैं, करेक्ट। ड्रग्स ले रहा है, तो उसको समझा नहीं पाएगा। हाँ। तो नंबर 1 तो है माँ पिताजी वो सबसे दूर होना है, तो वही डिसिप्लिन बच्चा को होना। सही रास्ता दिखा सकता है। करेक्ट। हम्म। हाँ, उनमें संस्कार रहने से वो बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे, तो फिर बच्चे जो है मिसलीड नहीं होंगे, रॉन्ग नहीं जाएंगे। हाँ। वेरी ट्रू। हम्म। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दीदी, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि आपने अपने कैपेसिटी में जो बेस्ट हो सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सब कुछ कर रहे हैं। अभी एज अ डीडीएल्स, या आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो आपका अथॉरिटी ज्यादा होगा, हाँ। वर्क एरिया बड़ा होगा, तो जी जी। तो आगे का क्या तो प्लान? मैं अभी मेरा प्लान है, अगर स्कूल फुल स्विंग में चलते हैं जी। तो मैं हर एक स्कूल में, जैसे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, सब में हमारा डिस्ट्रिक्ट में मैं हम्म। वीकली टेस्ट कंपलसरी करेंगे, हम्म। उस जो मंथली टेस्ट है। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हम्म। उसका मुताबिक फिर
अलग स्ट्रेटेजी लेना है। हाँ लेकिन अभी जो चल रहा है वो पुराना वाला, उसमें तो हम लोग मेरा यही मैं विशेष ध्यान देता हूँ कि उस वीकली टेस्ट होना है, मंथली टेस्ट होना है, उसके बाद क्वार्टरली, हाफ ईयरली, देन जितना भी को करिकुलर एक्टिविटी है उसको करना है। जैसे क्विज है, क्विज तो मैं सब्जेक्ट क्विज मेनली मैं कराने वाला हूँ। उसके बाद ऐसे कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन लोगों को कराना है। जैसे प्रोजेक्ट का होगा, कभी खेल जरा एम्फेसिस देने वाले हूँ, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड भी होना है और बच्चों को जो है वो लोग का जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ना है। तो ये प्यार से हम लोग कर सकता है, खाली मारपीट करके झगड़ा करके नहीं। वो टीचर्स को भी काउंसलिंग देना है कि किस तरह से आप बच्चों का टेस्ट ले सकता है, वो पहले काउंसलिंग देना। कहीं कहीं गया हूँ, वहाँ काउंसलिंग भी दिया हूँ। और इस बार फेलिसिटेशन भी 4 कम्युनिटी ने किया है, उसमें भी मैं जाके एजुकेशन का बारे में बताया। फिर जैसे एजुकेशन नहीं, कैसे ये करना है, पेरेंट्स का क्या ड्यूटी है, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ को जो इंटरेस्ट है उसमें जाने देना है, वो सब मैं बताती हूँ। क्योंकि हम लोग थोपने से वो सीखेंगे, लेकिन नहीं नहीं इंटरेस्ट का साथ नहीं सीखेंगे। नहीं, लेकिन वैसे जैसे आपने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी जो आया है उसमें भी इस इम्पोर्टेंट एम्फोसाइज इसी बात पे है कि बच्चों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना है। सो हाँ वॉट एवर दे कैन डू बेस्ट विच कैन बिकम देयर लाइवलीहुड एंड दे कैन एम्प्लॉय अदर पीपल, जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। यही उसके पीछे उद्देश्य है। होता है कभी कभी किसी बच्चे को एकेडमिक बहुत ज्यादा पसंद नहीं है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो उससे लेके उसको फेल कर देना और जैसे आपने बोला उसको एकदम अपसेट कर देना, रिजेक्ट कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें उसको एनकरेज करना है और उसमें उसको आगे बढ़ाना है। यही उद्देश्य है नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो हाँ जी, आपका जो आइडिया है वो उसमें भी काम करेगा। हाँ तो काम कोई करेंगे दीदी, वो बहुत अच्छा बात है। हाँ, तो उसमें कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। और कुछ आपको अपने काम के बारे में बताना है? मेरा तो दीदी, मैं स्पेशली काम करके मुझे बहुत हैप्पीनेस होता है। हाँ हाँ मैं ऐसे ऐसे बैठने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ऑफिस से आने का बाद भी अपना घर में भी ऐसे नहीं बैठती हूँ। जैसे फ्लावर गार्डनिंग करना, सब्जी थोड़ा हाँ हाँ लगाना, फिर मैं हाँ एम्ब्रॉयडरी, हाँ फिर वो एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, फिर हाँ स्वेटर भी बनाती हूँ। पहले हाँ तो हाँ मैं कपड़ा भी बुनती थी। हाँ तो ऐसे में सोशल एक्टिविटीज में भी जुड़ते रहती हूँ। मैंने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है हम्म, जो मुझे बुलाते हैं, तो मैं वहां में भी जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है काम करके। हम्म, और मेनली तो मुझे यही अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़े, हम्म, हमारे अरुणाचल के बच्चे कहीं भी जाए सक्सेस हो, या हम्म, पूरा इंडिया का कोई भी बच्चा हो, उसको हम्म, उसको हम सुधार सके। वो हम्म, मेरा, मैं किसी बच्चे को सुधार देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई बच्चा मुझसे झगड़ने आता है तो मैं, वो मेरा मौका है, मैं सोचती हूँ कि मैं उसको अभी समझाने का मुझे मौका मिल गया। ये मैं एक तो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ। वेरी गुड, नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हर एक स्टूडेंट को ऐसी टीचर मिलनी चाहिए जो उसकी बात को सुने और उसके मन से चले और उसको जो पसंद है वो करे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड हेल्थ। सो गुड लक फॉर ऑल योर इनिशिएटिव्स एंड ऑल योर वर्क। Thank you and happy new year to you also. Happy New Year to you too.